Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PGT Biology. Students, today I am going to discuss the second chapter of class 10th, that is control and coordination. We already discussed a little bit about this chapter. In this chapter, control and coordination means how we control our body and how we can regulate our body functioning. In the living organism, that is in the plants and animals, both systems perform a most important function. In the system of control, we discussed about the brain, while in the system of coordination, we discussed about the hormones. So in the plants, there is no brain. So in plants, we discussed only about the hormone system. But in humans, there is both nervous system and endocrine system are functional. Means control and coordination both are performed by the animals. So in the animals, we already discussed about some little knowledge of the control system. Now today we discussed in brief that the system of control in animals, that is nervous system means nervous system वो इंक्लूड करता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है. तो नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड करा था दो पार्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व इंक्लूड होती है. क्रेनियल नर्व वो वाली नर्व जो ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कोड से रिलेटेड है. दिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करे, इनवॉलेंट्री जो ना करे. Involuntary also known as autonomic nervous system. Autonomic nervous system is again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic. Today we are going to discuss the central nervous system. Central nervous system is the main part of nervous system. Central nervous system is divided into two parts, brain and spinal cord. First of all, we read about the brain. It is situated in the head region, while spinal cord is situated in the neck or trunk region. Okay. What about brain? It is the widest and uppermost part of CNS. Brain is the widest and uppermost part होता है CNS पार्ट का. कहाँ सिचुएटेड होता है ये? क्रेनियल कैविटी में. हमारे जो हेड पोर्शन होता है उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं. प्रोटेक्टेड होता है बोनी बॉक्स से जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं. हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्ड बॉक्स के अंदर, बोनी बॉक्स के अंदर फिट है. उस बोनी बॉक्स को हम क्रेनियम बोलते हैं. इस टाइप से बेटा आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा. ये एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेना बनाने की. अदरवाइज मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. मेन मैंने इसमें नेमिंग की है. फर्स्ट ऑफ दिस इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड. आउटर कवरिंग इज नोन एज cranium. Inside the cranium there is a more layering is present, it is known as cerebrum. This is the middle part of the brain, it is known as midbrain. There is also a small brain is present, it is known as cerebellum. And this midbrain is extend downward, that form the pons and the medulla. This medulla extend downward in the neck and the trunk region, and it is known as spinal cord. So it is the diagram of brain. What we have to read in the brain? ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. जो हमारा ब्रेन होता है हमने उसको तीन मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन. फर्स्टली हमें फोर ब्रेन रीड आउट करना है बेटा. फोर ब्रेन मतलब सबसे फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का. तो जो फोर ब्रेन है उसको हमने अगेन तीन टाइप में डिवाइड कर दिया. ओल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम एंड डायंसिफेलोन. तीन पार्ट में डिवाइड करा. ओल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम, डायंसिफेलोन. ओके, पहले हम फोर ब्रेन डिस्कस कर लेते हैं. जो फोर ब्रेन होता है ये फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, ओल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम, डायंसिफेलोन. ओल्फैक्टरी लोब क्या करता है? हमारी बॉडी में स्मेल को सेंस करता है. अच्छी या बुरी जिस भी टाइप की स्मेल है हमारी बॉडी में, स्मेल का स्टिम्युलस को सेंस करने के लिए बॉडी का जो पार्ट, ब्रेन का जो पार्ट फंक्शन करता है वो ओल्फैक्टरी लोब है. सेरिब्रम, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड हाईली डेवलप्ड पार्ट.
सेरिब्रम पे क्वेश्चन आता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट एंड हाईली डेवलप्ड पार्ट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्या फंक्शन होता है इसका? ऑल द वॉलेंट्री एक्शन, सारे वॉलेंट्री एक्शन मतलब वो वाले एक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लाइक पढ़ना, खेलना, चलना, बैठना, कुछ भी एक्शन जो आप अपनी मर्जी से करते हो वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। आप जो थिंकिंग करते हो, जो मेन थिंकिंग पार्ट है आपका ब्रेन का, डेट इज सेरिब्रम। जो इसमें लास्ट है डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन जो होता है, जो आपको मैंने ब्रेन के डायग्राम में दिखाया था, जो ग्लैंड प्रेजेंट है दो, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ये जो पार्ट होता है इस टाइप का, ये जो इस तरीके से एक्सटेंडेड है, डेट इज़ नोन एज डायनसिफेलोन। मतलब इसके पास ग्लैंड प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। तो फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसिफेलोन। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल को सेंस करता है, सेरिब्रम हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है, हमारी बॉडी की थिंकिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कराता है। डायनसिफेलोन के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो फोर ब्रेन के फंक्शन क्या हुए? फोर ब्रेन के फंक्शन वॉलेंट्री फंक्शन हुए, मतलब फोर ब्रेन फंक्शन करता है, हेल्प करता है लर्निंग में, रीजनिंग में, इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी, मेमोरी, मतलब जो भी फंक्शंस हमारे वॉलेंट्री हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, डेट आर परफॉर्म्ड बाय फोर ब्रेन। ओके, सेकंड पार्ट आता है मिड ब्रेन। बेटा मिड ब्रेन जो होता है वो छोटा सा ही पार्ट है। मिड ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्राई। हम इन पार्ट को डिटेल्ड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें ये पता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्राई। Then what is midbrain? It is the middle part of the brain. It acts as relay center between forebrain and hindbrain. मतलब फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का ये सेंटर होता है। रिले सेंटर मीन्स दोनों पार्ट, ब्रेन के दोनों पार्ट को, फोर ब्रेन को एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। फंक्शन क्या होता है इसका? हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट हम आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सडनली टच करते हैं तो हम विद इन अ सेकेंड जो प्रोसेस करते हैं, लाइक हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या हमने किसी निडल को टच किया, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी विद इन अ सेकेंड वाली मूवमेंट परफॉर्म करती है, तो वो वाली मूवमेंट रिफ्लेक्स एक्शन होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है हमारा मिड ब्रेन, इसका एक ही फंक्शन है। नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन। कि बेटा हाइंड ब्रेन जो होता है, हाइंड ब्रेन जो है वो लास्ट पार्ट है ब्रेन का। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। हाइंड ब्रेन का डिवीजन इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये क्या, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्या कंट्रोल करता है? बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, बॉडी का पोस्चर मेंटेन कराने में हेल्प करता है। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में डिफरेंस पूछा जाता है। सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करा रहा था और फोर ब्रेन का पार्ट था, लार्जेस्ट पार्ट था, जबकि जो सेरिबेलम है ये सेकंड लार्जेस्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है एंड बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने में हेल्प कर रहा है। सेकेंड पार्ट पोन्स वेरुलाई, इसका एक ही फंक्शन है, इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंट्रोल कराता है। लास्ट पार्ट मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। मेड्यूला ऑब्लेंगेटा का काम होता है हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो एक्शन हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, लाइक हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग मूवमेंट, सैलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, जितने भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहे हैं और वो हमारी वॉलेंट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, विल के अकॉर्डिंग नहीं है, डेट आर नोन एज इनवॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। ओके, तो इसको आप याद रखोगे, सेरिब्रम को और सेरिबेलम को। पोन्स वेरुलाई को भी आपको याद रखना है, एक ही फंक्शन है, रेस्पिरेशन। सेकंड आता है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा से निकल रही थी, और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा से निकलने के बाद हमारे जो बैकबोन वाला जो रीजन होता है वहाँ रन करती है, लेकिन वो एक बॉनी केज के अंदर फिक्स्ड होती है, एंड दैट बॉनी केज इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम।
क्या काम होता है इसका? सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, मतलब कोई भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है एंड रिफ्लेक्स एक्शन में मेन रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हम नर्व के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियल एंड स्पाइनल। बेटा क्रेनियल नर्व जो होती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, नंबर इनका याद रखना है 12 पेयर होता है। जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और इनका नंबर 31 पेयर होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वो वाला नर्वस सिस्टम जो हमारी मर्जी से एक्ट करे, लाइक राइटिंग, डांसिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा, और इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ना करे। तो इनवॉलेंट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिव होता है जब हम एक्साइटमेंट की कंडीशन में होते हैं, लाइक फाइट है, फ्लाइट है या एक्साइटमेंट है। लाइक जब हम किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटेड होते हैं या हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हाई हो जाता है तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, नॉर्मल होती है और हम नॉर्मल होके कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कराता है। और हम जब एक्टिव होके, जब हम बहुत ही एक्साइटेड होके कोई इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं तो वो वाला काम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। तो इस तरीके से हमने ब्रेन पढ़ा है। दोबारा एक बार रिवाइज करो जल्दी से। ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रम एंड डायनसिफेलोन। सेरिब्रम उसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से उसको पढ़ लेना। मिड ब्रेन के 2 ही पार्ट थे लेकिन हमें सिर्फ फंक्शन याद रखना है, रिफ्लेक्स एक्शन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। उसमें सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम का फंक्शन पूछा जाता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन कराने के काम आता है। कि स्पाइनल कॉर्ड तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व इंक्लूड करता है। क्रेनियल नर्व ब्रेन की होती हैं 12 पेयर और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड की होती हैं 31 पेयर। वो अगेन डिवाइडेड है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मर्जी के अकॉर्डिंग, इनवॉलेंट्री मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होना। इनवॉलेंट्री अगेन डिवाइडेड है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जब हम एक्टिव होते हैं तब काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स होते हैं तब काम करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। थैंक यू।